Good morning students. So today I will teach you new topic, that is cardiomyopathy. Firstly I will start from the introduction. What is cardiomyopathy? Cardiomyopathy, it is a progressive disease of the myocardium or heart muscles. In most cases the heart muscles weakens and it is unable to pump the blood to the rest of the body as well as it should be. That means it refers to a disease of the heart muscles which cause the heart muscles to become very enlarged, thick and rigid. Rigid means they become not elastic and also replaced with the scar tissue. So this is the introduction of the cardiomyopathy. Next is definition. Cardiomyopathy is a disease of the heart muscles that makes it harder for your heart to pump the blood to the rest of the body. Another definition is it is a group of disease that affect the heart muscles. That means a serious condition in which your heart doesn't pump as well as it becomes weak and thin and it leads to the wall problems and heart failure. सो ओवरऑल कार्डियोमायोपैथी ये एक हार्ट डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और जो उनकी इलास्टिसिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वो लूज़ हो जाती है. नेक्स्ट कॉसेस. Contributing factors for acquired cardiomyopathy include, first one is long term high blood pressure. Because of high blood pressure कंटिन्यू क्या होता है, हमारे आर्टरीज में कंटिन्यू अगर ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है यानी कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है दैट मीन्स हार्ट को बहुत ज़्यादा लॉन्गर और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली वर्क करना पड़ रहा है. तो जितने ज़्यादा हार्ट से वर्क लिया जाएगा हार्ट के जो मसल्स है उतने ही ज़्यादा इनलार्ज होते जाएंगे. सेकेंड वन इज़ हार्ट टिश्यू डैमेज फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्ट अटैक. थर्ड, क्रॉनिक रैपिड हार्ट रेट. क्रॉनिक रैपिड हार्ट रेट मीन्स इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. इंक्रीज कार्डियक आउटपुट मीन्स हार्ट वर्क्स रैपिडली मीन्स enlargement of the cardiac muscles. नेक्स्ट, हार्ट वॉल प्रॉब्लम. हार्ट से रिलेटेड जो भी वॉल्स है, मिट्रल वॉल है, सेमिलूनर वॉल है, एरोटिक वॉल है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, जितने भी वॉल्स है, अगर वॉल्स की ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम है या क्लोजिंग में प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है. और जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट एक्स्ट्रा होगा, जितना ज़्यादा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा उतने ही ज़्यादा कार्डियक जो मसल्स हैं इनलार्ज होंगे. नेक्स्ट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज ओबेसिटी, थायराइड डिसीज एंड डायबिटीज. दीज ऑल थ्री डिसीज great higher workload in the heart and which further cause the thickening and enlargement of the heart muscles. Next, another is nutritional deficiency like thiamine, that is vitamin B1. Drinking too much alcohol over the many years, that is called chronic alcoholism, which also result in chronic enlargement of the heart muscles. Use of cocaine, amphetamine, which also suppress the cardiac function. Use of chemotherapy, drug and radiation to treat cancer, which also damage the heart muscles, arteries, walls, etc. Next one is certain infection, especially those that inflame the heart, like inflammatory heart disease, for example myocarditis, that is inflammation of the myocardium layer, endocarditis, inflammation of the endocardium layer of the heart, and last one is pericarditis, inflammation of the pericardium layer of the heart. Next, certain iron buildup in the heart muscle, that is called chromatosis, that is iron buildup in the heart muscles which cause rigid heart muscles. Next, a condition that cause inflammation and cause lumps of the cells to grow in the heart and often organ sarcoidosis that cause hardening of the muscles. A disorder that cause the buildup of abnormal protein, that is amyloidosis, which also cause hardening of the cardiac muscles. And last one is connective tissue disorder like systematic lupus erythematosus. This is a connective tissue disorder which occurs in any organ of the body and damage our cells and organ. नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू ऑल ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स. इसमें 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ हाइपरट्रॉफिक, मेन जो टाइप्स है. सेकेंड वन इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. सो फर्स्टली वी विल डील द टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी, देन वी विल डील द पैथोफिजियोलॉजी.
So first is types. In types, first one is dilated cardiomyopathy. In this type of cardiomyopathy, the pumping ability of the heart, main pumping chamber, the left ventricles become enlarged and can't effectively pump out of the blood. Dilated cardiomyopathy ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है. इसमें क्या होता है, जो हमारी हार्ट की एबिलिटी है, जो मेन पंपिंग चैम्बर है हमारे हार्ट का, दैट मीन्स जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायलेट यानी कि फैल जाता है, इनलार्ज हो जाता है. दैट result the ineffective pumping of the blood. Next है hypertrophic. Hypertrophy means enlargement, abnormal enlargement. This type involves the abnormal thickening of the heart muscles, particularly affecting the muscles of the heart main pumping chamber. सेम थिंग इसमें भी हो रही है जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में है. इसमें भी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो बहुत ज़्यादा enlarge हो जाता है. दिस thickened heart muscles can make it harder for the heart to work properly. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहे हैं और उनमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है. Third one is restrictive cardiomyopathy. This is the another type of cardiomyopathy. In this type, the heart muscles become rigid and less elastic. इसमें क्या होते हैं, मसल्स जो हैं बहुत ही रिजिड हो जाते हैं और उनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाती है. They have no elasticity and no muscle tone. So it can't expand and fill the blood between the heartbeat. It can occur for no reason. दैट मीन्स इट इज़ समटाइम ऑडियोपैथिक. मीन्स कभी कभी क्या होता है, इसका हमें रीज़न पता नहीं चलता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का कार्डियोमायोपैथिक किस रीज़न से हुआ है. सो समटाइम्स इट इज़ आइडियोपैथिक. और इट कैन बी कॉज्ड बाय अ डिसीज एल्सवेयर इन द बॉडी दैट अफेक्ट द हार्ट, सच एज आयरन बिल्डअप इन द हार्ट मसल्स or any type of connective tissue disorder like systematic lupus erythematosus. So these are the main three types of cardiomyopathy. Another types of cardiomyopathy, first one is arrhythmogenic right ventricular dysplasia. In this type of cardiomyopathy, the muscles in the lower right heart chamber, that means right ventricles, is replaced by the scar tissue. इस टाइप के कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल्स के जो मसल्स रहते हैं वो धीरे धीरे डेथ होने लगते हैं और उसकी जगह स्कार टिश्यू वहाँ पे फॉर्म होता जाता है, विच कैन लीड टू हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स एंड ऑफन कॉज बाय जेनेटिक म्यूटेशन. मैक्सिमम ये जो इस टाइप का जो कार्डियोमायोपैथी वो जेनेटिक म्यूटेशन यानी कि किसी भी एबनॉर्मल जेनेटिक प्रॉब्लम्स या एबनॉर्मल जेनेटिक कॉज की वजह से होता है. जैसे हम बोल सकते हैं कि डीएनए उसका प्रॉपर सही नहीं है या उसका डीएनए जो है वो म्यूटेटेड है मतलब एबनॉर्मल जीन्स हैं. नेक्स्ट है अनक्लासिफाइड कार्डियोमायोपैथी. अनक्लासिफाइड cardiomyopathy like alcoholic cardiomyopathy due to drinking too much of alcohol for a long period which can weak the heart muscles. Next one is ischemic cardiomyopathy. It occurs when patient have coronary artery disease. कंटिन्यू अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज पेशेंट को हो रहा है, बार बार उसकी आर्टरी से वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट फर्दर कॉज द ब्लड वेसल्स टू द हार्ट मसल्स नैरो एंड बिकम ब्लॉक्ड. सो दीज आर द टाइप्स. नाउ we will deal the pathophysiology. So in pathophysiology, first is dilated cardiomyopathy. In case of dilated cardiomyopathy, left ventricle is enlarged and not effectively pump the blood. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इनलार्ज हो गया है और इफेक्टिव सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है. सेकंड थिंग हम देखते हैं, अगर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में इसमें भी सेम थिंग हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज हो गया है, उसकी वजह से क्या हो गया है, प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में जो एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होने की वजह से सफिशिएंट अमाउंट में जो ब्लड है वो बॉडी को नहीं मिल पा रहा है. थर्ड थिंग है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी. रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या है, हार्ट मसल्स बिकम रिजिड एंड लेस इलास्टिक. यहाँ पे जो हार्ट के मसल्स हैं उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, यानी कि वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं और प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं. सो ये तीनों टाइप जो मेन हैं ये सभी मिलके ओवरऑल क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इम्पेयर्ड, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के फंक्शन को इम्पेयर्ड कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट चैम्बर. तो इसकी वजह से क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फेल हो जा रहा है, मतलब वो जो ब्लड है उसको सफिशिएंट अमाउंट में पंप नहीं कर पा रहा है बॉडी को. तो वो ब्लड कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, हार्ट के अंदर
लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो गया है, अदर्स चैम्बर में भी धीरे धीरे पूरे ब्लड एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो बॉडी को सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड स्टेसिस इन द हार्ट चैम्बर विच फर्दर कॉज द हार्ट फेलियर. सो these are the pathophysiology of the cardiomyopathy. Next is clinical feature. What are the clinical feature we have seen in the patient with cardiomyopathy? So first one is breathlessness with exertion or event at the rest. पेशेंट रेस्ट में है या फिर उसने कोई ऐसा एग्जॉस्ट होने वाला काम किया है या काफ़ी एक्सरसाइज किया है तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, ब्रीथलेसनेस. नेक्स्ट है स्वेलिंग ऑफ द लेग, एंकल्स एंड द फीट. ये क्यों होगा, इसलिए होगा स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, एंकल एंड द फीट. क्यों, यहाँ पे कार्डियक चैम्बर्स जो है वहाँ पे ब्लड क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया. एक्यूमुलेट हो गया है मतलब कि जो ब्लड है बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, लोअर लिम्स में हमारे ब्लड नहीं जा पा रहे. ब्लड लोअर लिम्स में अगर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, जो लेग्स है वो और जो वहाँ की वेन्स है वो हो जाएंगी स्वेलोन हो जाएगी. स्वेलोन होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट को हैवीनेस फील होगा एंकल में, फीट में और लेग्स में, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा. एडिमा क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. नेक्स्ट है ब्लॉटिंग ऑफ द एब्डोमेन ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप. एब्डोमेन में क्या होगा, फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होगी पेशेंट को. नेक्स्ट है कफ वाइल लाइंग डाउन. जब पेशेंट लाइंग पोजीशन में रहेगा तो पेशेंट को कफिंग हो सकती है, फैटिग, हार्ट बीट फील्स रैपिड, टेकिकार्डिया हो सकता है. नेक्स्ट इज फ्लटरिंग, पाउंडिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट टाइटनेस and pressure feel inside the chest, high pressure feel inside the chest, heaviness, dizziness, light headedness and fainting. Another in अगर हम नेक में देखते हैं, नेक में डिस्टेंडेड नेक वेंस, रेस्ट वीनस जुगुलर प्रेशर. मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज होता है तो हम उसके लिए जुगुलर वेन डिस्टेंशन, ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है हम इसको मेज़र करते हैं. तो नेक में हमें जो जुगुलर वेन्स है वो डिस्टेंडेड दिखाई देंगे. लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी क्रैकल्स, जो हमको लंग्स के साउंड है प्रॉपर क्लियर नहीं होंगे. क्रैकल्स मीन्स जैसे किसी भी चीज़ के क्रैक होने का जो साउंड होता है वैसा ही पेशेंट का जो लंग्स के साउंड है वैसे ही हमको सुनाई देंगे. नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल. जीआई सिस्टम में अगर हम देखें तो लीवर इलाज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस. एसाइटिस हो सकता है मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनसाइड द बॉडी. पल्स इरेगुलर हो सकते हैं. एक्सट्रीमिटीज़ में पेरिफेरल एडिमा इन्वॉल्विंग लेग्स, जो लेग्स है हमारे लोअर लिम्स में उनमें एडिमा हो जाएगा. अब अगर हम पेशेंट को पाल्पेट करते हैं, पाल्पेशन अगर करते हैं, हार्ट बीट उसका पाल्पेट करते हैं, सो एपेक्स बीट में भी डिसप्लेस. जो एपेक्स की जो बीट हमको सुनाई देती है, जो हार्ट बीट, वो हमको मिसप्लेस मिलेगी, मतलब गलत जगह पे सुनाई देगी. नेक्स्ट है अस्कल्टेट. जब हम अस्कल्टेट करते हैं यानी कि जब हम स्टेथोस्कोप लगा के पेशेंट का हार्ट साउंड सुनते हैं, सो वल्वलर मर्मर, मतलब कि वॉल्व के पास जो हमको हार्ट बीट सुनाई देता है, दैट इज S1 एंड S2, वो हमको नहीं सुनाई देगा, उसकी जगह पे हमको मर्मर सुनाई देगा. मर्मर दैट मीन्स गैलोप साउंड. गैलोप साउंड S3 और S4 जो होते हैं दैट इज कॉल्ड मर्मर और गैलोप साउंड. तो ये हमको सुनाई देंगे इन पेशेंट विथ कार्डियोमायोपैथी. अगर जनरली हम पेशेंट को असेस करते हैं, सो फैटिक, डिसिप्निया, पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट लाइंग फ्लैट, पल्स ऑल्सो हाई, है ना. तो ये सारे जो क्लिनिकल फीचर्स हैं जो हम कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट में हम देखते हैं. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर. कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा चांसेस है कि उनको कार्डियोमायोपैथी हो सकता है. तो फर्स्ट वन इज़ फैमिली हिस्ट्री. ऑलरेडी पेशेंट हैविंग एनी फैमिली हिस्ट्री. लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से पेशेंट को हाइपरटेंशन है. कंडीशन विच अफेक्ट द हार्ट इंक्लूडिंग अ पास्ट हार्ट अटैक, पहले से पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है या कोई भी ऐसा कंडीशन जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एनी टाइप ऑफ हार्ट डिसीज़ पेशेंट को पहले से पास में हो चुका है किसी भी तरह का, ये वो पर्सन भी रिस्क फैक्टर में आ सकते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एनी इन्फेक्शन, इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी, ओबेसिटी विच मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर, long term alcohol use, any drug use like cocaine, amphetamine, anabolic steroid which result heart muscles become very rigid and very rigid and lose elasticity, means lose muscle tone like contraction or full relaxation. Heart failure, blood clot, any wall problems related to semilunar wall, mitral wall or any other wall, cardiac arrest and sudden death. So these all are the risk factor. Next is diagnostic evaluation. How we will diagnose the patient? So first is
फर्स्ट इज हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हमको सबसे पहले चीज़ देखनी है पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डिसीज़ पास्ट में हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा हम पेशेंट का वेट देखेंगे, वेट यानी कि पर्सन ओबेस तो नहीं है। तीसरी चीज़ जो हम चेक करेंगे वो ये देखेंगे कि पेशेंट एग्जॉस्ट होने पे ही पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, बार बार एग्जॉस्ट होने की वजह से, या जितने भी हमने रिस्क फैक्टर पढ़े, पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अल्कोहल यूज़ करता है, कोई भी कैफीन या एम्फेटामिन कोई भी ड्रग डिपेंडेंस है, मतलब जितने भी रिस्क फैक्टर और कॉसेस है सभी को हम हिस्ट्री में पहले चेक करेंगे कि पेशेंट की इसमें से किसी भी तरह का हिस्ट्री है या नहीं है। सेकंड थिंग है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कि पेशेंट को हमको जो लोअर लिम्ब है एंकल्स है उसमें हमको एडिमा दिखाई देगा, ये फर्स्ट है। दूसरा है जो जुगुलर वेन्स है उसमें नेक में डिस्टेंशन होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, तो ये सेकंड थिंग हो गई कि हमको जुगुलर वेन डिस्टेंडेड होगा। थर्ड, अगर हम अस्कल्टेट करते हैं तो पेशेंट का जो हार्ट बीट है एपेक्स बीट वो हमको मिसप्लेस्ड यानी कि गलत जगह पे सुनाई देगा। चौथी चीज़ क्या है कि अगर हम लंग्स के साउंड को हियर करते हैं तो वहाँ पे हमको जो लंग्स के साउंड है वहाँ पे हमको क्रैकल सुनाई देंगे, और साथ ही साथ हार्ट में हमको वॉल्स के पास अगर हम अस्कल्टेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप तो हमको मरमर सुनाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके अलावा भी कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जैसे कि फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे। एन इमेज ऑफ हार्ट विल शो वेदर इट्स इनलार्ज। चेस्ट एक्सरे से क्या हमको पता चलेगा, इट शो द इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, कौन से पार्ट में इनलार्जमेंट हुआ है। सेकेंड, इकोकार्डियोग्राम, दिस यूज the sound waves to produce the images of heart which show its size and its motion at its beat. These tests check the heart walls and helps to determine the cause of the symptoms. इकोकार्डियोग्राम में क्या है, ये हार्ट के जो साउंड वेव्स है उनको प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमें ये जानने में हेल्प मिलती है कि हार्ट का साइज क्या है, मोशंस कैसे हो रहे अकॉर्डिंग टू हार्ट बीट के अकॉर्डिंग कितना मोशंस हार्ट में हो रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इन दिस इलेक्ट्रोड पैचेस आर अटैच टू द स्किन टू मेजर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द हार्ट। प्रॉपर हार्ट में किसी भी तरह का अगर डिस्टर्बेंस है तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो भी डिस्टर्ब होगी, तो इसके थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट। ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट, योर हार्ट रिदम, ब्लड प्रेशर एंड ब्रीदिंग आर मॉनिटर्ड व्हाइल यू वॉक और ट्रेडमिल। मैंने इसके पहले भी बताया है ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट सेम टेस्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक्सरसाइज में और बिफोर एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज हम पेशेंट के वाइटल्स हम चेक करते हैं, लाइक हार्ट बीट चेक करते हैं, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सभी चीज़ें हम चेक करते हैं। कार्डियक MRI, कार्डियक CT स्कैन to create the images of heart inside or outside both. नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। सेवरल ब्लड टेस्ट माइट बी डन इंक्लूडिंग दोज ऑफ टू चेक द किडनी, थायराइड एंड लिवर फंक्शन। अगर पेशेंट को लिवर फंक्शन यानी कि रीनल फेलियर है, पेशेंट थायराइड डिसीज़ वाला है या लिवर से रिलेटेड उसको किसी भी तरह का डिसीज़ है लाइक हिपेटाइटिस है, तो हम उसका पर्टिकुलर उस डिसीज़ उस ऑर्गन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको भी हम पहले डायग्नोस करेंगे, जिससे कि हमको ये जानने में हेल्प मिलेगी कि इस पर्टिकुलर डिसीज़ के होने की वजह से पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हुआ है। वन ब्लड टेस्ट कैन मेजर बी टाइप natriuretic peptide, a protein which is produced in the heart. Your blood level of BNP, B type natriuretic पेप्टाइड माइट इंक्रीज व्हेन योर हार्ट इज़ इन हार्ट फेलियर। मैक्सिमम अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि हमारे हार्ट में प्रोड्यूस होता है, तो इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन केस ऑफ एनी हार्ट डिसीज़। अगर पेशेंट को किसी भी तरह का हार्ट डिसीज़ है तो हार्ट में प्रोड्यूस होने वाला ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो उसका जो लेवल है इंक्रीज़ हो जाता है। तो ब्लड टेस्ट में हम ये भी चेक कर सकते हैं क्या इस प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ है या नहीं है। नेक्स्ट है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन मैंने पहले भी बताया है कि इसमें हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं और हम ब्लड वेसल्स जो है उनको चेक करते हैं, ब्लड वेसल्स को चेक करते हैं, आर्टरीज कहीं पे ब्लॉक हो गई है क्या, हम ये चेक करते हैं, हार्ट के चैम्बर्स में कितना प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग। जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग जैसे कि अभी मैंने एक टाइप्स में बताया था कि समटाइम्स ये जेनेटिक भी हो सकता है तो हम, या फिर फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, तो इसके लिए हम जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग करते हैं कि फैमिली में किसी को है जिससे भी पेशेंट में ये ट्रांसफ़र हुआ है। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो इन मैनेजमेंट फर्स्टली आई विल डील द मेडिकेशन। इन मेडिकेशन फर्स्टली
दैट इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मैक्सिमम जो है कार्डियोमायोपैथी के जितने भी केसेस हैं उसमें हम मैक्सिमम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। कुछ इसमें मेडिकेशंस हैं, लाइक अगर पेशेंट जैसे कि हाइपरटेंशन वाला है तो हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन होने की वजह से जो कार्डियोमायोपैथी हो रहा है हम उस चीज़ से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। अनदर केस जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ होने की वजह से अगर पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो रहा है तो हमको सबसे पहले हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमको डायबिटीज़ को ट्रीट करना है। तो ये मेडिकेशंस जो हैं वो रिस्क फैक्टर जिस भी पर्टिकुलर कॉज की वजह से हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट करने के लिए ओनली देयर आर सर्जिकल मेथड और सम नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। सो हियर द सम example of medication like angiotensin receptor blocker like losartan, beta blocker to improve the heart function like metoprolol, digoxin. These drug also refer to treat the hypertension or any other type of heart disease, and digoxin is also called the cardiac glycoside. So these all the medication are used in the patient with hypertension or any other cardiac disease which further precipitate the cardiomyopathy. So the main management of the cardiomyopathy, under this there are two types of management. First one is non-surgical procedure. Non-surgical procedure, in non-surgical procedure there are two types of procedure. First one is septal ablation and second one is radio frequency ablation. So first one is septal ablation. क्या होता है? A small portion of the thickened heart muscle is destroyed by injecting the alcohol through a long thin tube catheter into the artery supplying the blood to that area. This allow blood to flow through the area. सेप्टल एब्लेशन में क्या करते हैं कि जो भी हार्ट मसल जिस पोर्शन का भी ठीक हो गया है हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं? बाय इंजेक्टिंग अल्कोहल इनटू अ लॉन्ग थीन कैथेटर। हम जिस भी हार्ट मसल्स का जो भी पार्ट ठीक हो गया है उस पार्ट में जो भी आर्टरी सप्लाई हो रही है उस आर्टरी में हम अल्कोहल को इंजेक्ट करते हैं एक कैथेटर, एक ट्यूब के थ्रू, जिससे कि क्या होता है वो पर्टिकुलर जो मसल्स है जो ठीक हो गई है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। टू ट्रीट द एबनॉर्मल हार्ट रिदम डॉक्टर गाइड द लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द हार्ट इलेक्ट्रोड एट द कैथेटर टू ट्रांसमिट द एनर्जी टू डैमेज अ स्मॉल स्पॉट ऑफ द एबनॉर्मल हार्ट टिश्यू। दोनों चीज़ें सेम है, बस फर्स्ट वाले में हम क्या करते हैं जो थिक हार्ट मसल्स हैं उनको डैमेज करते हैं बाय इंजेक्टिंग द अल्कोहल थ्रू अ कैथेटर। और जो सेकंड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहल इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हमने कैथेटर इंसर्ट किया है लेकिन साथ ही साथ हम उसमें एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं और हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्जरी। टाइप्स ऑफ सर्जरी यूज टू ट्रीट द कार्डियोमायोपैथी लाइक फर्स्ट वन इज सेप्टल मायोक्टोमी। इन दिस ओपन हार्ट सर्जरी सर्जन रिमूव्स द पार्ट ऑफ द थिक हार्ट मसल्स। इसमें क्या करता है जो सर्जन्स है या डॉक्टर्स है जो भी हार्ट मसल जो पोर्शन थिक हो गया है उसको रिमूव कर देते हैं। दैट सेपरेट द टू बॉटम हार्ट चैम्बर्स, रिमूविंग पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड रिड्यूस द मिट्रल वॉल रिगर्गिटेशन। सेप्टल मायोक्टोमी मतलब सेप्टम जैसे कि चैम्बर्स के बीच में जो सेप्टम्स होते हैं दैट इज सेप्टम। इंट्रा आर्टियल सेप्टम मीन्स दो आर्ट्रिया के बीच में सेप्टम्स, और इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम मीन्स सेप्टम बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स। तो दो सेप्टम्स के जो होता है उसको हम क्या करते हैं, जो भी सेप्टम जहाँ पे ठीक हो गई है, दो चैम्बर्स के बीच की जो वॉल है जो भी ठीक हो गई है, सर्जन्स उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो इन फर्स्ट डायग्राम जैसे कि आप ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम देख सकते हैं, इसमें क्या है, इंजेक्ट किया गया है, ये है सेप्टल एब्लेशन। सेकंड जो डायग्राम है आपका है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। और जो थर्ड इधर डायग्राम है जिसमें एक लिखा हुआ है नॉर्मल हार्ट एंड हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये है आपका एग्जाम्पल, ये आपका जो एग्जाम्पल है ये है सेप्टल मायोक्टोमी। इसमें हमने जैसे कि जो सेप्टम है उसको रिमूव कर दिया है। Next, surgery, surgically implanted device. Several types of device can be placed in the heart to improve the function and relieve the symptoms. So there are three types of devices which is implanted. First one is implantable
water defibrillator. This device monitors the heart rhythm, delivers the electric shock when needed to control the abnormal heart rhythm. It doesn't treat cardiomyopathy but watch for and control abnormal rhythm, a serious complication of the condition. ये जो पर्टिकुलर जो डिवाइस है ये कार्डियोमायोपैथी को ट्रीट नहीं करता है. कार्डियोमायोपैथी होने का रीजंस अगर पर्सन में ये है कि पर्सन को कार्डियक कंडक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आफ्टर कार्डियोमायोपैथी पेशेंट की जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बार बार डिमिनिस्ड हो रही है या वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो हम पेशेंट में ये पर्टिकुलर डिवाइस इम्प्लांट करते हैं. ये डिवाइस क्या करता है, हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड करता है जब हार्ट को चाहिए होता है. नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस. दिस हेल्प्स द ब्लड टू सर्कुलेट थ्रू द हार्ट. इट इज़ कंसिडर्ड आफ्टर लेस इन्वेसिव अप्रोच आर अनसक्सेसफुल. इट कैन बी यूज्ड एज ए लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और एज ए शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट वाइल वेटिंग फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट. सपोज अगर पर्सन का जो कंडीशन है कार्डियोमायोपैथी पेशेंट को हो गया और वो काफ़ी क्रॉनिक कंडीशन में है जहाँ पे कि हमको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, उस केस में हम ये जो डिवाइस है पर्टिकुलर ये इम्प्लांट करते हैं. ये ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट को हेल्प करता है. Pacemaker. These small devices placed under the skin in the chest or abdomen and provide the electrical impulses to control the arrhythmia. Pacemaker ये भी एक डिवाइस है जिसको कि हम एक्सटर्नली भी प्लेस करते हैं और इंटरनली भी हम इसको इम्प्लांट करते हैं. दो टाइप्स के पेसमेकर होते हैं, एक्सटर्नल पेसमेकर और इंटरनल. जो इंटरनल पेसमेकर होते हैं उनको हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं और जो एक्सटर्नल होते हैं हम उसको बाहर प्लेस करते हैं. पेसमेकर का काम क्या होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हार्ट के एबनॉर्मल इम्पल्स को, हार्ट की एबनॉर्मल इलेक्ट्रिविटी को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके. इसमें 3 डायग्राम्स आप देख सकते हैं. फर्स्ट वाला जो डायग्राम है आप में को इसमें मिलेगा वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस है. सेकंड आप इसमें देख सकते हैं, सेकंड यहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है पेसमेकर लीड्स राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये पेसमेकर का है. जो फर्स्ट वाला है वो है आपका वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस. जो बीच में जो सेकंड वाला है वो है आपका इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर इंसर्टेड अंडर द स्किन. तो फर्स्ट वाला जो सर्जरी है उसका डायग्राम है सेकंड वाला जो सर्जरी है उसका डायग्राम फर्स्ट है और थर्ड वाले का डायग्राम है थर्ड. नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट. क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हमको करना है. सो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस. डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज वेंट्रिकुलर फंक्शन और डिसरिथमिया. कार्डियक आउटपुट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ डिक्रीज वेंट्रिकुलर फंक्शन और डिक्रीज और डिमिनिस्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन. एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन. फैटिग रिलेटेड टू डिसीज प्रोसेस. इम्प्रूविंग कार्डियक आउटपुट. सो हमको क्या क्या मैनेज करना है. सो फर्स्ट इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट, मॉनिटर द हार्ट रेट, रिदम, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी एटलीस्ट एवरी 4 hours. Improving the cardiac output, monitor heart rate, evaluate CVP, central venous pressure monitoring by the pulmonary artery catheter to assess the progress and effect of drug therapy. हम सेंट्रल वीनस प्रोसेस को मेज़र करते हैं कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में जो ब्लड का प्रेशर है वो कितना ज़्यादा है और साथ ही साथ हम इनको इस चीज़ का भी आइडिया मिलता है कि पेशेंट को जो भी हम ड्रग दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, पेशेंट के साथ जो भी हमने सर्जरी परफॉर्म की है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो हार्ट है वो कितना जल्दी इम्प्रूव हो रहा है उसका फंक्शन. Calculate the cardiac output and systemic vascular resistance. Observe for changes in cardiac output such as decreased blood pressure, changes in mental status, decreased urine output. ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है. एडमिनिस्टर फार्मेकोलॉजिकल सपोर्ट. जैसे पेशेंट है, सपोज हाइपरटेंसिव वाला पेशेंट है तो हमको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है. डायबिटिक पेशेंट है तो हमको एंटी डायबिटिक मेडिकेशन देने हैं. नेक्स्ट है कोगुलेशन स्टडी मॉनिटर करना. ऑब्जर्व फॉर द एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग. रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट, इन्फॉर्म द पेशेंट एंड विजिटर ऑफ विजिटिंग आवर्स, ओरिएंट द पेशेंट, इनकरेज द क्वेश्चन एंड वॉइसिंग ऑफ द फियर्स एंड कंसर्न. पेशेंट किसी भी तरह का क्वेश्चन कर रहा है, उसको किसी भी चीज़ रिलेटेड फियर है, डाउट है, तो वो आपको
क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वो उसको क्लियर करना है। असिस्ट द पेशेंट इन आइडेंटिफाई स्ट्रेसर एंड रिड्यूसिंग देयर इफेक्ट। आपको चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स, ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं जो ट्राइगर्स कर रहे हैं कि पर्सन को कार्डियोमायोपैथी बार बार ये हो रहा है, तो उस चीज़ को पेशेंट को हमको बोलना है कि वो उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर सके। टीच द यूज़ ऑफ डाइवर्शनल एक्टिविटी, जिससे कि वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके, जिससे कि उसकी जो एंजाइटी है वो रिलीफ हो सके। थैंक यू।